like I want to do this character because और सिया में पूजा कई पिक्चर में नहीं थी, था कि भी 17 साल की एक लड़की दिखनी चाहिए ऑन स्क्रीन। और तो मैं कुछ 83-84 केजी था। Oh. कुछ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें चल रहा था मैं। एंड बॉक्स ऑफिस इज ओनली वन एस्पेक्ट, देयर आर 99 अदर थिंग्स। और मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। हाय, माई सेल्फ विनीत कुमार सिंह। hi, this is Pooja Pandey. हाय, दिस इज मनीष मुंद्रा And you are watching us on Tele Tele Chakkar. Chakkar. Well, today exclusively on Telechakka with me, Vishakha Pandit, I have the cast and the director of Sia, Vineet, Pooja, and director himself, Mohan. I would say firstly, welcome on Telechakkar. And I think the first thing the basic of it, what is Sia all about? And what is like a little insights into your characters? So, Sia is a very emotional journey of a girl who has been wronged. And as a survivor, as a fighter, she takes a journey further to fight for justice. And that's her strength, that even in spite of being broken down severely, she stands up, gathers herself, and wants to fight to get justice. All right. Well, guys, what was that one thing? Because I'm sure हर character का एक X factor होता है, एक hook होता है जो शायद आपको पसंद आता है. उनकी कहानी सुनकर आज समझता है that what would have actually been the reason for choosing the role. But I would love to know from you people, what was that one reason that actually was like, okay, ये करना बनता है? मेरा एक रीजन नहीं, कुछ मल्टीपल रीजंस हैं। पहला ये, भरोसे पे चलता हूँ। 1 मिनट में ओके किया। Really? हाँ, 1 मिनट में ओके किया। और मेरे लिए एक फोन कॉल इनफ होता है, मैं अगर किसी पे ट्रस्ट करता हूँ। What about you, Pooja? What was that one? Like he has a lot of bunch of things to say about it, but आपका क्या reason था to say actually yes for such a role? So basically, it's a character of a young girl, very brave, I would say, fighting for justice, very honest, deep, emotions, lot of emotions, sensitive. So basically, when I heard the narration from sir, I was literally moved by the script, and I was like, I want to do this character because I can literally feel the pain, what she must have gone through. So I can relate. That's why I said yes. Before I actually ask you guys anything else, I'm very keen to know one thing because as a writer, आप जब एक किरदार के बारे में लिखते हैं, एक छवि से बन जाती है. आप अपने दिमाग में ढाल लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा दिखना चाहिए है. And as a director, you had obviously another vision, and plus it being your directorial debut, you obviously had a very different vision to it. So do you personally feel कि विनीत एंड पूजा ने वो जो एक छवि आपके दिमाग में बनी थी उन किरदारों की, उनका जो मार्क था वो अचीव किया है या सरपास किया है? नहीं, ऑफ कोर्स सरपास किया, लेकिन जब हमने लिखा था स्क्रिप्ट, उस समय महेंद्र का जो कैरेक्टर था वाज क्लियरली स्पीकिंग आउट इटसेल्फ, ये विनीत के लिए है। तो मैंने विनीत को फोन भी किया था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, अभी तक लिखा नहीं है, लिख लूंगा तब मैं आऊँगा वापस, बट इट्स समथिंग व्हिच आई वांट यू टू डू। एंड ही सेड नहीं आप लिख लो, लिख के आओ, लेकिन मतलब करेंगे, जरूर करें। सो दैट्स द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से इज द कैरेक्टर स्पोक दैट वी नीड समबडी, बिकॉज हमने काम भी किया हुआ साथ में, तो वी नो ईच अदर्स बॉडी ऑफ वर्क एंड वी नो ईच अदर्स डेप्थ, तो वो मुझे पता था कि यही है। जहाँ तक लड़की का प्रश्न है, वो ऑफकोर्स सिया में पूजा कई पिक्चर में नहीं थी, था कि भी 17 साल की एक लड़की दिखनी चाहिए ऑन स्क्रीन, और मुझे नया चेहरा चाहिए था जिसको ऑडियंस देख करके ये नहीं बोला चाहिए तो वो फिल्म में थी ना, ये फिल्म में थी। तो वो हम बहुत क्लियर थे कि शी शुड बी अ न्यू एंट्रेंट एंड ऑफ कोर्स शी शुड लुक ऑन स्क्रीन as 17-year-old girl. These were the two factors, and we would have gone through almost like 25, 30, 40 auditions, and then I think 10 days, 12 days ahead of the Reiki, the final Reiki, we found her, and when we got her, I think it was God gift that उसको देख के हमें लगा कि ये यही है, इसकी आंखें ना आंखें यही बोल रही है, ये सिया है। Well, on that note, I'm very keen to know another thing that seeing how the topic it is, it's not something that you have रोज बैठे बात कर लोगे. It's something that will actually leave a mark on the audience, and I'm surely hoping that's going to leave a positive mark on the audience. And maybe as the way आप लोग बता रहे हैं महेंद्र के बारे में, शायद और इसी प्रकार के महेंद्र शायद खड़े हैं, they might take stand for things and might create a difference out there. But if I talk about the insights and in depth of the character, as Sia the character was very difficult, as Mahendra for आपके लिए उसको perform करना या उस पर अपने आप को prep करना मुश्किल रहा होगा. तो what was those small nuances that you actually make it a point कि okay ये चीजें तो इसमें होनी चाहिए हैं, ये चीज आएगी तभी ये कैरेक्टर महेंद्र का इस तरीके से निकल कर आएगा. So what was those preparations that you guys did? मेरे लिए ये था, जब मैंने हाँ की उस समय मैं प्रिपेयर कर रहा था कुछ एक्शन फिल्म्स वगैरह के लिए,
और मुझे एक लंबा वक्त चाहिए था उसके लिए। तो मैं कुछ 83-84 केजी था। कुछ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें चल रहा था मैं। और And I think this is अभी के या साथ कंप्लीटली। yeah. तो जब मैंने सर से मिला तो सर बोले कि विनीत ये तो महेंद्र नहीं है, क्योंकि इसे देख के ही लगता है इसको तो कौन ही हाथ लगाएगा, ये तो चढ़ बैठेगा। तो मैं भी उस चीज़ को समझ रहा था। तो जो वक्त मिला, जब भी शूट किया एट दैट टाइम आई वाज 67-68 केजी। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 83-84, वहाँ से रिड्यूस करते करते यहाँ पहुँचा। तो वो एक था। बट हाँ, पहले भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, तो मुझे अपनी बॉडी को समझता हूँ। But then on that note, I think Pooja, you are the one जिसको जवाब देना चाहिए that you know, because उनके कैरेक्टर ने अपने आप को उसमें ढाला, लेकिन you know your character is the one who's actually going through so much in the entire journey. So how was it? I would not say easy, but how difficult was it for you to actually mentally put yourself there and you know come back the next day also, because it is a lot of pressure on the head. So how difficult was it for you? So before shooting this film, I was shooting for a series called Bharat. It's a very different character than this. वो एक विलेज की लड़की का कैरेक्टर है, येट रोमांटिक। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन पे वही था, क्योंकि मैं उसके लिए शूट करने जा रही थी और वो किसी दौरान से वो कैंसिल हो गया। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस फिल्म। और ये कैरेक्टर जब मैंने सुना नरेशन, तो मुझे 2 मिनट लिए मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, इसके लिए आपको बहुत एक्चुअली मेंटली स्टेबल या तो प्रिपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव कैरेक्टर है। आप इसमें छेड़खानी तो बिल्कुल नहीं कर सकते इस कैरेक्टर, या तो कुछ भी आप कर दो। बहुत ट्रॉमेटाइजिंग कैरेक्टर है ये। Yes. तो चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, फिजिकली, मेंटली। You know, I would say that unfortunately, there are these two topics that are very common nowadays. One is like the box office numbers, and two is like the social media game. और अक्सर लोग उसी के हिसाब से, मतलब I'm asking मोहन सर आपको, because you know Vineet is a well established and known face out there, but as you said that you wanted somebody in the character of Sia जो जिसको ज़्यादातर audience you know नहीं जानती है या कम recall value रहे उसकी. But unfortunately, a lot of times directors, makers, anyone you can say, have chosen those people जिनकी recall value बहुत ज़्यादा है, so that you know audience उसके बहाने उनको देखने आएगी. So what was the? I agree that for Sia the thought was pretty correct, but you know somewhere down the lane, was it in your head कि मैं ये step उठा तो रहा हूँ, what if it backfires? Has that situation ever happened to you that you know you? I was very confident of the decision, and जीवन में हमेशा 2 राहें होती है, मिलती है आपको हर स्टेप में। उस एक होता है बहुत सरल, आसान, शॉर्टकट, बहुत आसान होता है उसमें जाना, और उसका आउटकम आपको पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलेगा। बट एक होता है बड़ा दुर्गम होता है, वो रास्ता कठिन होता है। वहाँ पे आप अपने सपनों के साथ चलते हो, कोई आपका साथ नहीं देता है। बट जब उस रास्ते से चल करके निकलते हो तो आपको महसूस होता है कि आपने जीवन में कुछ किया जो आपका अपना है, आपके अपने सपने को आपने जिया, तो वो आपका पुरस्कार है, वो आपका परितोष है। तो मैं दूसरे रास्ते को लेता हूँ, हमेशा चूज करता हूँ लाइफ में। Okay, the last thing before I say goodbye to you guys, you just said that you know मैं अगर चाहता मैं 15-20 मिलियन वाली वो लेता, and you know शायद बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स भी बड़े अच्छे आते, but there are times तब भी नहीं आ पाते हैं, but that's a different story. But then I would personally want to know from the three of you as a director, writer, you as actors, how much does the box office game actually bothers you people, or you just feel कि okay हमारा काम है देना, but then you hope that you know you get the results as much as you are putting your efforts, but then the box office game does not really affect you that much as it affects to other people. What is it like for you people? See, as a producer also, if you have seen my chain of works, Yes. We never thought box office is that important. We see there are 100 things to achieve when you make a film, and box office is only one aspect. There are 99 other things. Yes. Okay, we want to tick 99 and do our best. Box office जहाँ तक है वो बहुत सारी possibilities and dimensions होते हैं उसमें। फिल्म अच्छी बनती है तो दर्शक आते हैं, देखते हैं, बट फिल्म के आसपास क्या घटित हो रहा है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आपके कंट्रोल में अदर थिंग्स जो होते हैं उसको अगर हम निभा लें और एक अच्छी और सच्ची कहानी कह जाए जो अपनी उम्र मतलब 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक शेल्फ लाइफ कर ले, हमारे बियॉन्ड भी रह जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
मैं इसका जवाब देने के पहले बॉक्स ऑफिस वाले पे कुछ कहना Please. चाहूँगा। सर ने जो बोला उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं सहमत हूँ। सर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मैं एक्टर हूँ। मेरे लिए बॉक्स ऑफिस नो डाउट मैं एज एन एक्टर अलग अलग तरह के प्रयोग करना चाहता हूँ, लेकिन उस प्रयोग में बहुत सारा खर्च होता है किसी का। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो प्रयोग की आज़ादी मुझे तभी मिलेगी जब मेरी फिल्म चले, जब मेरा काम चले, लोग देखें, ताकि अगर कोई मेरे ऊपर पैसा लगाए तो उसका पैसा लौट के आए, नुकसान ना हो। और मैं कोशिश करूंगा कि वो आज़ादी मुझे उस फिल्म के थ्रू मिल सके, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग करने की इंतजार रहेगा उसका हमारे को। बट देन व्हाट डू यू हैव टू टेल द फैंस इन एड कि उनका क्या टेक अप होने वाला है सिया के सफर के साथ? एक ज़रूरी फिल्म है और ये रूटीन फिल्म नहीं है, मैं ये बोलूँगा। बहुत ज़रूरी फिल्म है। सिया 16 सितंबर को रिलीज़ हो रही है आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। आप जाइए, देखिए, और हाँ, आप टिकट लेंगे तो मुझे ताकत मिलेगी। I would say it's a beautiful, well written and well made film. It's a very important film for all of us. It's based on a society message, and it's a character of a young brave girl fighting for justice. So please do watch it and shower your love. बट देखने आ जाइएगा एंड फीडबैक देना मत भूलिएगा, बिकॉज यू नो आई एम श्योर ऑल थ्री ऑफ यू रिक्वायर द फीडबैक एंड जानना चाहते हैं कि ऑडियंस को कैसा लगा आपका काम। और गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर ऑन टेली चक्कर। आई विश यू ऑल द लक। एटलीस्ट ऑडियंस का नहीं पता, मैं तो चली जाऊंगी। आई विल तो श्योरली सी एंड आई विल श्योरली टेल यू गाइस। मेरा 200 रुपए पक्का है। I will surely tell you how it was for sure, but thank you for joining me. Well, this is me, Mushaka Pandit, signing off from Chali Chakkar, 16 September. Do not forget to watch Sia in your nearby theatres. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.